Hello, bankers. A very good evening to all of you. Welcome back. Welcome to JIB CIB Prep, guys. In this particular session, we are going to discuss application based and cases studies based on unit number second, which is all around LRS, liberalized remittance scheme, as well as other remittance facilities for individual. Okay, so we have already done with the concept classes as well as the unit wise MCQs based on this particular unit. So in this particular session, we will try to understand what type of case studies you may face from this particular examination, from this particular topic, right? We have already done with case studies. We have like 7 to 8 case studies based on your unit number one, which is exchange rate and forex business. In case of LRS, we do not have any case studies which are generally part of your Macmillan book. ठीक है, ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा. So you have to be very mindful about these particular things. If anything which is part of your Macmillan book, so that is very important. And most of the time you will see the question based on the same pattern. Okay, so for unit second and unit 3 there is no case studies. For LRS, for letter of credit they have case study, so that definitely there will be question based on that particular one. Okay, in our previous examination they asked one case study, or there is one another aspect of question that is known as question without options. So from unit number 20 unit number second and third, you may expect those type of question. Okay, so we have already done with these concept classes, okay, concept as well as unit wise MCQs. So now from this particular unit there are two questions that can be asked. एक तो आपका like one case study that can be based on LRS scheme, that is something threshold limit or TCS. ठीक है? So tax collection at source. Recently during the budget announcement also, government they generally propose to increase the TCS threshold from 7 lakh to 10 lakh. So that is a point they can ask in your upcoming examination. ठीक है? Another point is around the calculation of TCS. ठीक है? What will be the TCS charge on a particular person, or based on that given case study numbers and all. ठीक है? And there are some other question without options, questions are expected, so we will discuss those particular one. ठीक है? So सबसे important यहाँ से जो है केस स्टडी में जो अभी recent examination में भी पूछा गया था, that is around the your that is completely driven by the LRS scheme, and under LRS we have TCS applicability, so that is based on that particular one. ठीक है? So जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा गया था. ठीक है? So रोहित is generally planning to spend like in June 25, so send 30,000 US dollar for his sister's education in UK. That money was borrowed from some bank in India. ठीक है? The another transaction that is done by Rohit was in the month of August 25. Remit 50,000 US dollar for foreign travel package. Okay, so now based on this particular one, what will be the TCS implication under regulation, assuming USD INR at for 83. Sometimes they can give you, like, let's say for this it is 83, for this it is 82.50 or 83.50, some other rate also. So you have to be very careful about those particular rate. तो यहाँ पे जैसे we have a straight forward rate, ठीक है, जैसे आपका straight rate आपको दिया गया है. So now the first सबसे important आपका part है, that is if you know the current guidelines you can easily handle this particular question. ठीक है? So guidelines are basically we have three major categories. One is education. तो जैसे this is the case of education, and where the money is, the source of money is generally from some Indian bank or loan. ठीक है? So your TCS rate will be 0.50%. ठीक है? This is the one. Second is आपका for travel, foreign travel and all. ठीक है? So it is like with effective from 1st of October 2024 itself, it become 20%. And for third category is medical. ठीक है? So if it is for medical expenses, so it is 5%. Okay, so earlier it was 0.50 and 5%.
with effective from 1st October 2024 onwards, it become like apart from these two, for other it become 20%. ठीक है, अब ये देखो बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन है, ठीक है, इफ यू नो these particular things, ठीक है, एंड इफ दे आस्क यू टू जैसे आपका जो करंट है दैट इज, देखो अभी तक आपका दैट फाइनेंस एक्ट वो अभी पास नहीं हुआ, मे बी जैसे आपके एग्जामिनेशन तक पास हो जाता है, ठीक है, देन यू हैव टू टेक केयर अबाउट दैट टीसीएस थ्रेशोल्ड, ठीक है, तो थ्रेशोल्ड में आपका द करंट थ्रेशोल्ड लिमिट इज 7 लाख, इफ आई सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यूजिंग द करंट थ्रेशोल्ड, ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर केस फर्स्ट आपका 30 इंटू 83, ठीक है, सो कितना होता है आपका 30 इंटू 83 विच इज इक्वल टू टू सॉरी so it is 2 lakh, sorry, 24 lakh 90,000, ठीक है, so the into 83, so it is equal to 24 lakh 90,000. Okay, so first remittance was for this much of money, ठीक है, so it is the अब पहले केस में what this is the value, in second case it is again same rate 83, ठीक है, so it is 50,000 into 83, so it is equal to 41 lakh 50,000, ठीक है, so 41 lakh 50,000, ठीक है, so in this particular case TCS will applicable at the rate of 20% because they have executed their limit in this particular situation itself, right? तो कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका पहला जैसे 24 lakh 20 for like for this particular one minus 7,000, if you 7 lakh, if you minus 7 lakh from this particular one, ठीक है, so it is equal to, अगर हम इसको निकालते हैं 24 9 minus 7 lakh, so it is equal to 17 lakh 90,000, ठीक है, so the value that generally comes is 17 lakh 90,000, ठीक है, so 17 lakh 90,000 का at the rate of कितना परसेंट, 0.5 into 0.05, so it comes to आपका 89,500, ठीक है, so 0.50% and it is 0.05 अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, so it will come TCS for this transaction, TCS आपका इसके लिए कितना है 89,500, ठीक है, so for this TCS is 89,500. for another case if you talk about this, so entire देखो यहाँ पे क्या होगा, अगस्त मंथ के अंदर जो ट्रांजेक्शन हुई है इसमें, क्योंकि जो आपका मिनिमम थ्रेशोल्ड है वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है, सो नाउ the TCS will be applicable on the entire value, and entire value is how much, 41,000 sorry 41 lakh 50,000 आपका, so it is into 0.2, so it is 83 sorry 8 lakh 30,000, ठीक है, so in this case it is 8 lakh 30,000, ठीक है, so 8 lakh 30,000, so 8 lakh 30,000 plus आपका 89 500, so it is equal to 90 total TCS, ठीक है, so total TCS will be payable how much, 91,000 sorry 9 lakh 19,000, 9 lakh 19,000 500. So this is the TCS which will be payable by this person called Rohit आपका, ठीक है, so total TCS obligation will be this. समझ में आया सबको, ठीक है, so there is a chance, ठीक है, आपके पास अभी भी इस बार भी there is a probability कि they may ask this type of question in your examination because there are some latest changes. अब ये change के साथ आपको question पूछेगा एज पर द न्यू रिजीम, ठीक है, तो न्यू रिजीम के हिसाब से जो न्यू थ्रेशोल्ड लिमिट है, ठीक है, अगर वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू पास होता है, सो यू हैव टू माइनस लाइक आपका 24 लाख, जैसे क्या हो जाएगा एज पर द न्यू रूल, ठीक है, न्यू रूल के हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इट इज आपका माइनस 10 लाख, अगर हम इसमें से कर लें 10 लाख, तो इट विल बिकम 14 लाख 90,000, ठीक है, सो इनटू 0.05, so TCS will be 74,500, ठीक है, 74,500, ठीक है, एज पर द न्यू प्रोविजंस, ठीक है, और न्यू थ्रेशोल्ड लिमिट प्लस आपका यहाँ पे कितना था 8 लाख 30,000, ठीक है, 8 लाख
30,000, so it is equal to 90,450 आपका, ठीक है. So sorry, 90,000, sorry 9,04,000 as per the new. So new उसके हिसाब से कितना होगा? It is 9,04,500. So this will be as per new. वो आपको डिफरेंस भी पूछ सकता है, what will be the difference. आपका तो this minus this will be your answer. So this is the one, ठीक है. सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपने इसको समझ लिया तो this is the only case study which you may face from this particular unit itself, ठीक है. So 9.2 lakh यहाँ पे थोड़ा सा numbers को आपका राउंड ऑफ किया गया, ठीक है. अदरवाइज लाइक द फिगर्स आर सेम, ठीक है. सो दिस इज द केस आपका जहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है. और इसी को अगर आप न्यू से सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा अदर्स आपके जो नंबर्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है दोस्तों. तो पहला केस आपका, ठीक है. सो दिस इज द वन. प्लीज डू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है. सो द प्रपोज्ड इंक्रीज इन थ्रेशोल्ड ऑफ टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स on the liberalized remittance scheme is to 10 lakh from 7 lakh, okay, the current one is expected to benefit travel in foreign exchange segment as well as increase the tax compliances. Okay, so this is the new proposed one as per the union budget 2025-26. Okay, तो वो न्यू के हिसाब से पूछता है, सो यू हैव टू यूज थ्रेशोल्ड एज अ 10 लाख. अगर ओल्ड के हिसाब से पूछता है तो थ्रेशोल्ड इज 7 लाख जो एग्जिस्टिंग आपका है अभी के लिए, ठीक है दोस्तों. तो ये आपका पहला चीज जिसको आपको ध्यान रखिएगा. एंड डिफरेंसेस भी आपका पूछ सकता है, हाउ इट विल मेक लाइक व्हाट विल बी द डिफरेंस अमाउंट विल बी पेड और इट विल बेनिफिट द कस्टमर्स. तो इस तरीके से वो कैलकुलेशन भी पूछ सकता है न्यू वर्सेस ओल्ड के अंदर, ठीक है. So now I have given like 2 questions for all of you, ठीक है. 2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ. Mr. X did a remittance during 23-24, ठीक है. अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर यूज हो रहा है तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है. सो जनवरी आपका 5 लाख फॉर हर ब्रदर्स his brothers a higher education to Canada, ठीक है. दिस इज द वन, ठीक है. तो जनवरी में एक ट्रांजेक्शन हुआ है, दूसरा आपका मार्च में हुआ है 12 लाख, ठीक है. For the foreign vacation with his family, what will be the TCS implications, team? Now I'll give you rate also, okay. So assume that in this particular situation rate was 83.50, okay. So just do the exact calculation and do mention into the comment section. And in this particular case the rate was supposed that 82.50, ठीक है. तो इस तरीके से आपका रेट हम लोग मान लेते हैं यूएसडी आईएनआर के, ठीक है. तो दो अलग अलग रेट पे इसके आपके एक्सचेंजेस हुए हैं, ठीक है. सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन देखो यहाँ पे बिल्कुल टेंशन वाली चीज नहीं है. यू हैव टू अप्लाई टीसीएस ऑन बोथ फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड बोथ द ट्रांजेक्शन गिवन इन द क्वेश्चन बिलोंग्स टू फाइनेंशियल ईयर 23-24. समटाइम व्हाट दे विल डू, लेट्स से they are asking you to calculate for financial year 2023-24 and there is some data which belongs to some other financial year, ठीक है. जैसे अगर मैं इसको कर दूं सपोज दैट let's say it is July 2024. So July 2024 is which is generally that remittance is generally part of your financial year 24-25, ठीक है. छोटे छोटे चीजें होती हैं, देखो हमारे पास उस समय लाइक एग्जाम प्रेशर आपका होता है, ठीक है. वी हैव टू कवर 100 क्वेश्चन एंड वी हैव टू स्कोर गुड. बीएफएम का सब्जेक्ट है, बट ये छोटे जो माइनर इंफॉर्मेशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो आई विल एक्सपेक्ट, आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग इन क्वेश्चंस का आंसर देखो जब तक करोगे नहीं तब तक उतना समझ में नहीं आएगा. तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. आई हैव 2 क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है. तो इसको आप थोड़ा सॉल्व कीजिएगा एंड आई पर्सनली चेक ईच एंड एवरी कॉमेंट्स और आपका जो भी आपने अपने आंसर्स भेजे होंगे, ठीक है. एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन सेंड मी थ्रू द लाइक टेलीग्राम एज वेल, ठीक है. मिस्टर जी डिड रेमिटेंस ड्यूरिंग 23-24, ठीक है. रेमिटेंस आपका 23-24 के हैं, ठीक है. सो आपका 15 लाख फॉर हर ब्रदर्स हायर एजुकेशन एंड अप्रैल 24 आपका 12 लाख for a foreign vacations, ठीक है. What will be the TCS implication for the year financial year 23-24? जैसे यहाँ पे क्लियरली आपका 23-24 का पूछा गया है. नाउ सी, हाँ दिस इज द क्वेश्चन जहाँ पे देखो जनवरी 2024 एंड अप्रैल 2024, ठीक है. सो दिस ट्रांजेक्शन विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस वन, ठीक है. तो ये ट्रांजेक्शन का
इस फाइनेंशियल ईयर के टीसीएस कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं होगा. सो यू हैव ओनली हैव टू कैलकुलेट फॉर दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है. तो अगेन दिस इज योर सेकंड होमवर्क. सो प्लीज डू मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन. ठीक है दोस्तों. तो वो आप कुछ आपका अपार्ट फ्रॉम दीज लाइक बेसिक आपका, ठीक है, जैसे आई विल शो यू योर बुक क्वेश्चन ऑल्सो. ठीक है. आपके बुक में जैसे उसने मल्टीपल एंट्रीज के साथ, जैसे हमने 2 एंट्रीज के साथ करी, यही आपका 3 एंट्री में भी हो सकता है. सो वी विल डिस्कस दोज वन. सो व्हाट इज द थ्रेशोल्ड अंडर दिस. तो अगर ये आपका करंट ईयर का पूछ रहा है, अगर वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रहा है एज पर यूनियन बजट 25, ठीक है, सो योर आंसर विल बी 7 लाख ओनली. बट इफ इट इज अराउंड द यूनियन बजट रिलेटेड क्वेश्चंस, सो योर आंसर विल बी आपका 10 लाख. ठीक है. तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा. दूसरा, एंड दिस इज अ वेरी माइनर चेंज, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट लाइक इसको आसानी से पास कर लेगी, इसमें कोई टेंशन नहीं होगा. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. अब देखो आपके बुक के अंदर क्वेश्चन कैसे दिया है. कस्टमर ए, ठीक है, सो मेक अ रेमिटेंस ऑफ 6,50,000. अज्यूम कि दीज ऑल रेमिटेंसेस फॉर मेडिकल पर्पस. ठीक है. आप ये मान के चलो कि ये आपका मेडिकल पर्पजेस के लिए इन्होंने आपके रेमिटेंसेस किए हैं ए के द्वारा. ठीक है. तो अब यहाँ पे पहली बार उसने आपका जो रेमिटेंस किया है 6,50,000 का. सो देयर विल बी लाइक उस समय हमारा जो टीसीएस थ्रेशोल्ड था दैट वाज 7 लाख. सो देयर विल बी नो टैक्स एप्लीकेबल इन दिस पर्टिकुलर केस. ठीक है. नो टैक्स विल बी कलेक्टेड. इन सेकेंड आपका मेक रेमिटेंस आपका 9,50,000. तो यहाँ इस केस में क्या होगा आपका जो आपका 50,000 है उसको हटा दो. 9 लाख के ऊपर आपका 5%. ठीक है. इफ इट इज फॉर मेडिकल पर्पज 5% और 9 लाख आपका, ठीक है, 9 लाख पे 5%. ठीक है. एंड द थर्ड वन इज आपका 40,000 अगेन फॉर मेडिकल पर्पज. सपोज दैट ऑल द 3 एंट्रीज बिलोंग्स टू द मेडिकल पर्पज. ठीक है. तो आपका 5% ऑन 40,000. अब अगर ये न्यू के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आपका 10 लाख. ठीक है. फर्स्ट तो ये नो टैक्स होगा. इसमें जो टैक्सेबल होगा दैट विल बी आपका 9 और आपका 3 माइनस 6 लाख. तो यहाँ पे किस पे होगा 6 लाख पे आपका जो टैक्स रेट होगा 6 लाख का 5%. इन दिस केस 40,000 का 5%. ठीक है. तो इस तरीके से जो छोटी छोटी चीज, तो कई बार व्हाट दे विल डू कि आपका डेट वाइज आपको दे दिए हैं और उस डेट के हिसाब से आपको कहीं ना कहीं वो एक सिम टाइप ऑफ भी हो सकते हैं या फिर ये तीनों. लेट्स से इट इज फॉर आपका एजुकेशन पर्पज. जो पहला वाला था वो एजुकेशन पर्पज के लिए था, बट वो आपका टैक्स उस समय टीसीएस का यूज उसमें नहीं था. सेकेंड वन इज फॉर मेडिकल पर्पज. तो आपका 50,000 जो बचा हुआ वो 9 लाख पे आपका 5%. दिस इज फॉर द ट्रेवल एक्सपेंस. तो 40,000 पे आपका 20%. सो जस्ट यू हैव टू द बेसिक मैथ एंड कैलकुलेटर इज अलाउड. ठीक है. तो इस तरीके से आप इनको एंड यू विल गेट वर्चुअल कीबोर्ड. ठीक है. आपको आपके जैसे जेआईबी में आपको वर्चुअल कीबोर्ड नहीं दिखा होगा, अब इस बार आप ड्रैग करोगे नीचे तो आपको वर्चुअल कीबोर्ड मिलेगा. एंड विद दैट पर्टिकुलर वन आपका जो नंबर्स हैं, आपका डेसिमल है या फिर आपके जीरो हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ से लगा पाएंगे. ठीक है दोस्तों. तो ये क्वेश्चंस हमने आपके कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर भी किए थे. आई होप ये सबको क्लियर है. ठीक है. एंड लास्ट ईयर दिस वाज द चेंज. ठीक है. पिछली बार जो हमारा चेंज था वो अराउंड इसके था. ठीक है. और इस बार आपका फिर से ये न्यूज में आया, मतलब ड्यूरिंग द बजट दे इंक्रीज दिस सम 7 लाख थ्रेशोल्ड टू 10 लाख. दिस इज द ओनली थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर. न्यूज में है, जैसे लास्ट टाइम न्यूज में था तो उन्होंने क्वेश्चन किया, इस बार आपका फिर से है. देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है दोस्तों. सो एलआरएस ऑल रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड अदर्स, तो लिमिट कितना है इसका 2.5 लाख. ठीक है. दे कैन आस्क यू क्वेश्चन विदाउट ऑप्शंस के अंदर आपको जानने के लिए. इनिशियल कितना था 25,000. ठीक है. सिंपल सा आपका. नेक्स्ट वन, what is the maximum permissible duration for fund to remain ideal in non-interest bearing foreign currency account FCA, जो यूजुअली हम आपका IFSC के साथ ओपन करते हैं, IFSC अंडर LRS गाइडलाइंस, वो कितना है आपका 15 डेज है. ठीक है. तो यहाँ पे अगेन वन क्वेश्चन कैन बी, दे कैन आस्क वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन. सो इट इज 15 डेज. ठीक है. सो इट इज 15 डेज आपका जो रखा जा सकता है. ठीक है. नेक्स्ट वन आपका, what is the tax collected source TCS rate outward remittances exceeding 7 lakh for non-educational and non-medical purpose from October 1st 23. तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, योर आंसर विल बी 20%. अब ये सेम क्वेश्चन आपका थ्रेशोल्ड के ऊपर भी हो सकता है विद इफेक्टिव फ्रॉम दिस डेट. तो आपका 7 लाख और आपका 10 लाख. ठीक है. दोनों को ही आप लोग ध्यान रखेंगे. ठीक है. Next one, under LRS, resident individual required to repatriate the income earned
on investment abroad over and above the principal amount within how many days from the date of such receipt, realization, परचेज, एक्विजिशन और डेट ऑफ रिटर्न टू इंडिया. तो ये हमने क्वेश्चन आपका वहां पे भी डिस्कस किया था विद ऑप्शंस में भी. ठीक है, तो क्या होगा आंसर, व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर विद इन हाउ मेनी डेज, विद इन 180 days दे डू हैव एन ऑप्शन टू री इन्वेस्ट दैट पर्टिकुलर मनी. तो अगर वो री इन्वेस्टमेंट नहीं करें तो दिस इज द मैक्सिमम परमिसिबल टाइम जहां पे वो उनको होल्ड कर सकते हैं. अदरवाइज दे हैव टू रीपैट्रिएट दैट पर्टिकुलर मनी इनटू INR itself. ठीक है, तो आपका so the investor who has remitted funds under LRS can retain and reinvest the income earned from his investment made under the scheme. However, they received realized unspent unused foreign exchange unless reinvested shall be repatriated and surrendered to authorized dealer person within a period of 180 days from the date of receipt. आपका ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था ये भी. ठीक है, what is the maximum permissible tenure for SNRR account in the India? Tenure कितना होता है SNRR account का? This question belongs to आपका I guess next question. ठीक है, next topic. but ठीक है, कोई कितने समय के लिए होता है आपका maximum 7 years के लिए. ठीक है, हाँ इसी उसका है NRI banking जो है. ठीक है, so basically if an NRI if they have some business interest in India, so to manage those particular transactions they generally यूज SNRR अकाउंट. ठीक है, SNRR अकाउंट का इस्तेमाल वो लोग करते हैं. ठीक है, एंड इट कैन बी मैनेज फॉर 7 years. उसके बाद आपका दे कैन नॉट डू एनी ट्रांजेक्शन. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स जो हमने SNRR अकाउंट्स के अंदर आपका डिस्कस किए थे. ठीक है, सो Mr. X make remittance 15 lakh for pursuing education through a loan obtained from an financial institute. तो what will be LRS? तो ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं फॉर हाफ मार्क्स एंड 1 मार्क्स. सिंपल सा. तो 10 लाख आपका 15 लाख अगर ये एज पर न्यू जो आपके जैसे लेट्स से दैट एक्ट गॉट पास ऑन 1st of April. ठीक है, विद इफेक्टिव फ्रॉम 1st April TRS आपका जो थ्रेशोल्ड ऑन TCS विल बी लेट्स से 10 लाख गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव कर दिया. उन्होंने बोल दिया विद इफेक्टिव फ्रॉम 1st April. तो आपका क्या होगा 15 लाख माइनस 10 लाख 5 लाख इंटू 0.05. अगर नहीं होता है आपका पुराने उसके हिसाब से है सो यू हैव टू लाइक जो 8 लाख है उसका 0.50%. ठीक है, under LRS resident individual required to repatriate the income earned on reinvested abroad or over in okay we have discussed this particular one, sorry it's a repeat question. ठीक है, 180 days will be right answer for this particular one. ठीक है, so this is it. तो आपका जो यूनिट 2 एंड यूनिट 3 है वहां पे आपके मैकमिलन बुक को अगर आप पिक करते हैं सो देयर इज नो केस स्टडी एंड पास्ट में भी आपका ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है. ठीक है, सो दे हैव आस्क्ड सम क्वेश्चन विदाउट ऑप्शंस बट ये LRS वाला सिचुएशन वाज देयर इन रीसेंट एग्जामिनेशन एज वेल. सो वी विल प्रैक्टिस क्वेश्चन विदाउट ऑप्शंस आल्सो एज वेल एज आपका ऐसे जो छोटे छोटे एरियाज जहां पे भी स्कोप है वी विल कवर दैट पर्टिकुलर वन. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इसमें कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए किसी को भी एंड इट इज अ काइंड ऑफ थिंग्स कि जो आपने कॉन्सेप्ट में भी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है और सिंपली इफ एग्जामिनर इज आस्किंग 1 मार्क्स और 2 मार्क्स क्वेश्चन यू शुड हैंडल दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रॉपर्ली. ठीक है, मतलब इसमें कोई भी हमें किसी भी तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को मिस आपका नहीं करना. ठीक है, ऑलराइट गाइस, सो दिस इज इट. नाउ आई विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन टुमारो एट सेम टाइम विद आवर अनदर नेक्स्ट यूनिट आपका. ठीक है, जहां पे हम लोग उससे रिलेटेड जो ऐसे ही एरियाज स्कोप है उनको आपका डिस्कस करेंगे. ठीक है, एंड इट विल आल्सो हेल्प यू टू रिवाइज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट. सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन. बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.